डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. Namaskar student friends, myself Dr. Akhilesh Kumar Upadhyay, Assistant Professor in Department Journalism and Mass Communication, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. I welcome to you in Chaitanya studio. Today I will discuss in Inverted Pyramid part 2 and paper number 2, Understanding Media, Mass Communication and Journalism. Yesterday I discussed and what is the importance, significance of the inverted pyramid, and just I talked about history, significance, and what is the role today in the present scenario in worldwide inverted pyramid. So, end of the day, end of the lecture, yesterday just I talked to you. I will continue the second lecture part 2 inverted pyramid. So, again left of the some major important title. So, today I will discuss and share what is the significance and importance and some of the left title. So, I will discuss in the today session, and today is the end of the part 2 and this unit. So, we will start now. Firstly, I did talk about the what is the objectives. Yesterday I discussed about the objective and what is the significance of objective, and next slide is the uncompletion on this unit. So, yesterday I very briefly and explain the completion of this unit, and third is the introductions. I did talk about this, and this is the figure of the inverted pyramid. Second, what is the role, 5W and 1H. History of inverted journalism, what is the history of inverted journalism, what is the story background of this come to the in inverted pyramid in the as a journalism. So, I did talk about significance of the concept, and next these are the I broadly explained yesterday, and how to punch line, what is the importance I did talk about, and these are the features, these are the points. What is the role of introduction lead? I did already talked about types of lead, you know very well. Incidental, what is the incidental lead and what is the meaning of the incidental lead, already talked about yesterday, and the last title is the observation lead. Yesterday I finished this title, observation lead. What is the observation, what is you feel now, and what is the when you read any title, any subtitle, any features, any magazine, or followed by any kinds of things. So, when you read about any kinds of things, any journals, any magazines, what come to your points, what come to your mind, what you feel now, this is called by observation lead. These perceptions built by after reading any books, any kinds of journal, any newspaper, any watching television, any story, movie. When you finish this any kinds of things, audio, visual, any kinds of things. So, that is why when you finish the lectures or video, so what you feel now, this is called by the observation lead. Ginger lead, many scholarly said that आपके पास it should be a punch line होनी चाहिए, it should be a punch line, very crucial and importance. What is the significance of ginger? जिंजर मीन्स क्या, जो एक तरीके से उसको आकर्षण करे, अटेंशन क्रिएट करे, क्रिएट अटेंशन.
create attention of the audience. So अगर आप अटेंशन क्रिएट कर पाते हैं एक छोटे से शब्दों में, लाइक आप स्प्राइट का एग्जाम्पल ले लें, स्प्राइट का कोई एग्जाम्पल, जो पेयजल आजकल गर्मियों में खूब ऐसे आता है कि जाइए मत कहीं बुझाइए प्यास, ऐसे करके कि झुकना तो पड़ेगा उठाने के लिए, थम्स अप। दिस इज द कॉल्ड बाय द पंच लाइन, एक छोटी सी लाइन जो कि एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है ऑडियंस का। क्या पंच लाइन है स्प्राइट का, इस तरीके से एडवर्टीज आप देखो तो कहीं ना कहीं जब एक अटेंशन क्रिएट आप करता है चीज़ों को, उस क्वेश्चंस के पीछे आंसर छुपे जब होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एज ए जिंजर लीड। किस तरीके से जिंजर लीड करता है आपके पीछे जो सबटाइटल है, जो मेन फीचर्स है, उसको किस तरीके से वो क्लेम करता है और कैसे वो लीड करता है, दिस इज कॉल्ड बाय द जिंजर। नेक्स्ट, सेकेंड डे लीड। सेकेंड डे लीड मीन्स क्या है? व्हाट इज द सेकेंड डे लीड? इट मीन्स कोई कहानी आज बनी या कुछ भी इंसिडेंट हुआ, सपोज पूरा डे या 2 दिन 3 दिन या 4-6 दिन लोग उसे वेट करते हैं, आफ्टर ऑल उस फिर जाते हैं उसे चेक करने के लिए या फिर रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर न्यूज़पेपर के पास जाते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे आप ले सकते हैं कि एक 4 इयर्स की गर्ल है जो मिसिंग है, वो आप मानो कल मिसिंग हुई हो, 2-4 दिन पहले मिसिंग हुई हो, तो क्या करते हैं कि एक दिन तो वेट करते हैं, उसके बाद सबसे पूछना शुरू करते हैं। वो माइट बी सीन देयर डाटा, लाइक आपने कहीं देखा उसको, इन्फॉर्म देम एंड अथॉरिटीज सून एज पॉसिबल, तो उसके पास अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। तो क्या होता है कि फर्स्ट डे फिर पूछेगा कब ये घटना हुई, कहाँ पे घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, उसे उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है, लोग देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बाय द सेकेंड डे लीड। One is the nut graph. What is the nut graph? Nut graph is a paragraph in its main points of the story. Like जैसे एक अखरोट होता है, अखरोट कितना सख्त होता है ऊपर से, लेकिन जब आप उसे तोड़ते हो, जब उसे बिखेरते हो, तो उसमें एक अच्छा मटेरियल आपको निकल के आता है। उसी तरीके से कि स्टोरी के पीछे जो कवर्ड जो होती है एक अच्छे पैक तरीके से, उसे हम कॉल करते हैं जर्नलिज्म की अगर बात करें, ये रिपोर्टिंग की बात करें, उसमें नट ग्राफ की बात करते हैं कि जो आपकी हेडिंग होती है एक तरीके से वो उसको दिखाता है, किस तरीके से उसको आप बनाए हो, कैसे उसको सजाए हो, कैसे वो आकर्षण कर रहा है, हाउ टू क्रिएट इन अटेंशन ऑफ द पीपल, हाउ टू क्रिएट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। दिस इज कॉल्ड बाय द इन द सब्जेक्ट ऑफ द जर्नलिज्म कॉल्ड ऑफ द नट ग्राफ। इट मीन्स जैसे अखरोट को आप देखो, उसी तरीके से किस तरीके से कितनी मजबूती से उसको ऊपर ढका होता है, पता नहीं चलता है क्या है, लेकिन जब उसे आप तोड़ते हो तो उसके पीछे पूरी कहानी होती है। जैसे कि आपकी हेडिंग क्रिएट करती है कि उसके अंदर क्या, किस तरीके से आप उसे रखे हो, आपकी पॉइंट्स को जस्टिफाई करता है, रीडर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और जो उसके अंदर की सपोर्ट, जैसे कि अखरोट में मटेरियल है अंदर, उसी तरीके से आपकी कहानी में मटेरियल होनी चाहिए। इट शुड बी in depth in your material, like under a nut graph. Next, brief background, basic writing elements of the body and the end. What is the meaning of this? A story is a amalgamation of the multiple sets of the information of a particular topic. यानी एक कोई जब कहानी होती है, उसके पास बहुत सारे उसके कहानी में कई राज छुपे होते हैं, कई मिश्रण का एक कहानी होता है, एक सम्मिलित रूप से एक कहानी होती है, और उसमें बहुत सारी सूचना होती है। उसमें डिफरेंट टाइप के आइडियाज हो सकते हैं, किस तरीके से स्टैटिक्स भी हो सकता है, कमेंट्स भी हो सकते हैं, आप किस तरीके से उसमें ऑब्जर्वेशन किस तरीके से उसको फील कराते हैं, एक्सपर्ट की उसमें राय हो सकती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, जियोग्राफिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, एज ए वेदर फैक्ट्स हो सकते हैं। आप कहानी को जिस तरीके से आप क्रिएट करोगे, उसमें एक कहानी के पीछे कई सारी कहानी होती है। जैसे हम अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास, हिस्ट्री इज नॉट ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री नॉट ओनली द स्टोरी, हिस्ट्री इन बिल्ड ऑल एंटायर सब्जेक्ट्स सच एज व्हेन यू टॉक्ड अबाउट एनी काइंड्स ऑफ मैन, एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स who have existence on this earth,
एवरीवन्स हैव अ हिस्ट्री। जब आप उसकी कहानी के पीछे जाओगे तो व्हाट इज द गो इन द बैकग्राउंड, आप उसके बैकग्राउंड में जाइए। बैकग्राउंड में आप जाओगे तो उसके जियोग्राफिकल कंडीशन में जाओगे, उसके वेदर में जाओगे। जैसे आप बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन, टॉक्ड अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन, वेरी नो। अब जो देखते हो हिस्ट्री में कि इंडस सिविलाइजेशन क्या है, भारतीय परंपरा। फिर बहुत कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जाते हो, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन पे आप जाते हो, अब जो चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में आप जाते हो, यूनान की सिविलाइजेशन में जाते हो, तो क्या आर यू टॉक्ड अबाउट ओनली हिस्ट्री? नो, इट्स all kinds of things you talked about. Like that time, what is the condition? What was the conditions that time? How to destroy that times this civilization? Only one civilization alive today. These called up the Indus civilization, right? तो क्यों इंडस सिविलाइजेशन जिंदा है, बाकी सारी सभ्यताएं क्यों विलीन हो गई, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या बिल्ड होती है उसके पीछे। कोई कहता है वेदर आया, कुछ बोलते हैं इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, कुछ बोलते हैं कल्चरली उनका कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे बोलते हैं कि ज्योग्राफिकली कुछ हुआ। तो क्या ये हिस्ट्री नहीं है? यह भी हिस्ट्री है, यह भी इतिहास है, यह भी एक कहानी है। तो जब एक कहानी आप कहते हो तो उसमें ज्योग्राफी भी आती है, गणित भी आती है, मैथमेटिक्स भी आपकी आएगी, आपका पर्यावरण से सारी चीजें जुड़ी हुई आएंगी, मौसम आएगा, समाज आएगा। तो इतिहास केवल इतिहास नहीं, वरन इतिहास केवल इतिहास नहीं है। लोग बोलते हैं कि कहाँ इतिहास में केवल कहानी, कहानी नहीं होती है। जैसे हर एक मनुष्य के एक अपना इतिहास है, हर वो चीज का एक अपना एक इतिहास है। आप टेबल को ले लो, एक उसका इतिहास है, एक कैमरे का एक इतिहास है अपना, एक टेलीक्रॉम्प्टर का एक अपना एक इतिहास है, एक जब ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं कि उसका एक अपना इतिहास है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि व्हेन यू टॉक्ड अबाउट एनीवन लाइक हिस्ट्री इन पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री, सो यू विल गेट इन एवरीवन्स अलाइव एंड द इंपॉर्टेंस ऑन दिस अर्थ, he have a history. History, not only the history, entire history enabled है, मौजूद है। जो आप बात करते हो, जो आप पूरी संपूर्ण इतिहास की बात जब आप करते हो तो उसमें केवल कहानी नहीं है, कहानी में सब कुछ है। All are things available in the story. अब उसको देखते आप कैसे हो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। आप किस पर्सपेक्टिव से उसे देखते हो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। तो कहने का बस यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड की जब राइटिंग एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सारे जो एग्जाम्पल की मैंने आपसे बातचीत करी, मैंने टॉक्ड अबाउट लाइक दिस काइंड्स ऑफ द एग्जाम्पल थ्रू द दिस टाइटल एंड टाइटल, उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में जब आप बात की तो उसमें कहने का तात्पर्य बस इतना है कि उसमें सब कुछ एंटायरली है, जिसमें उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वेदर है, सोसाइटी है। कैसे उसको आप क्रिएट करते हो, कैसे आप उसको मेकिंग करते हो, कैसे बनाते हो, तब जाकर के कहानी बन पाती है। कैसे ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, कैसे ब्रिज की आपकी कहानी काम ऐसे काम करेगी, कैसे कोई कहानियां लोगों को याद रह जाती हैं। जैसे बहुत सारे पोइट हुए, अब क्यों कालिदास को ही याद करते हो, क्यों शेक्सपियर को ही याद करते हो? अगर हम पोइट्री की बात करते हो तो क्यों गालिब को ही आप याद करते हो उर्दू में, क्यों मीर को ही आप याद करते हो? बहुत सारे हैं, हर काल में है। क्यों चंद्रवरदाई को ही आप क्यों याद करते हो? या आधुनिक में हम बात करें सुभद्रा सिंह चौहान को ही आप याद क्यों करते हो? क्योंकि कुछ चीजें आपके माइंड में इफेक्टली उसको पॉजिटिव उसका प्रभाव होता है, उसके पीछे एक कहानी बिल्ड होती है, एक नरेट होती है जो आपको टच करती है, इसलिए चीजें वो याद रह जाती हैं। तो एक कहानी के पीछे जो सब कुछ छिपा होता है, जो बैकग्राउंड कहने का तात्पर्य, जो बैकग्राउंड आप जब बनाते हो तो बैकग्राउंड के पीछे सारा सब कुछ उसमें इंसिस्ट होता है। तब कैसे उस कहानी को बनाओगे, कैसे उसको मिश्रित करोगे, कैसे उसमें बिल्ड करोगे सारी चीजें, तब जाके क्रिएट होती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि इन्वर्टेड पिरामिड में क्या क्या टिप्स आप करके उसको बना सकते हो, तो उसमें बेसिकली 8 फीचर्स की बात की, 8 key tips for the inverted pyramid for the writing context. The first is the bottom line, up front.
जब बॉटम लाइन आप कैसे उसको बनाते हो। सेकेंड इज शॉर्ट एंड क्रिप्स, आप उस कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक क्रिप्सी टाइप के उसे बनाओ, आप छोटे बनाओ और एक आकर्षण बनाओ। प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंस, जो आप कहानी बना रहे हो, लाइक यू क्रिएट द स्टोरी, तो उसका इंपॉर्टेंस पहले आपको दिखना चाहिए। और इंपॉर्टेंस कहां दिखेगा? आपके बॉटम लाइन में। बॉटम लाइन में जब दिखेगा, जब आपका ऑडियंस बॉटम लाइन को फोकस करेगा, तभी जाकर के आपकी कहानी पढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि कोई मास्टर शेफ है, कोई खाना अच्छा बना रहा है, तो बहुत सारे लोग कुक हैं, खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो क्या सब फेमस हैं? कुछ ऐसे हैं बहुत महंगे हैं, बहुत फेमस हैं, सारी सब कुछ चीजें वैसे ही हैं, लेकिन उसको किस तरीके से वो हाईलाइटेड करते हैं, कैसे बनाते हैं। कहीं की बोलते हैं कि यहाँ दाल अच्छी है, कहीं राइस बहुत अच्छा होता है, कहीं उसके वेजिटेबल्स बड़े अच्छे होते हैं। तो जो वैरायटीज होती है, भोजन जब आप करते हो तो उसमें सुगंध अच्छा होता है। जैसे अगर हम एक श्लोक की बात करें, संस्कृत के श्लोक में, तो एक श्लोक आता है कि भोजन चाहे जैसा भी बना हो, तो उसमें कि घृत सारम च भोजनम, भोजन का जो सार है, जो भोजन का रहस्य है, भोजन चाहे खराब हो या अच्छा, अगर बहुत अच्छा बना हो, उसमें एक स्पून आप घी डाल दो तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। बहुत खराब उसका स्वाद हो, फिर भी एक स्पून डाल दो तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो अर्थात भोजन का सार घी है। दूसरी लाइन कहता है कि रात्रि सारम च जागरणम, रात्रि का सार क्या है? सोते तो सभी लोग हैं, सब मनुष्य सोता है, जानवर भी सोते हैं रात्रि में। तो रात्रि का सार सोना है? नहीं, वो कहता है कि रात्रि का सार जागना है। क्योंकि जब आप जगेंगे रात्रि में तो देख पाएंगे कि जो लोग जगे हैं रात्रि में क्या करते हैं, कौन चोरी करता है, सारे जो कुकृत्य होते हैं मैक्सिमम, आजकल तो खैर दिन में भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिन में नहीं हो रहे हैं, वो प्लान तरीके से रात्रि में होते हैं। क्योंकि आपकी वहां पे अवेयरनेस नहीं होती है, वहां पे आप एक तरीके से तदग्न नहीं होते हैं, आप दूसरी मुद्रा में होते हैं। फिर अगली लाइन क्या कह रहा है कि आगतम च स्वागतम, अर्थात आने वाले का सार क्या है। अगर घर पे आपके कोई मेहमान आता तो उसका सार क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहता है कि आने वाले का वेलकम करना, स्वागत करना, यही उसका सार है। कोई आपके दरवाजे पे आया, कोई आपके घर पे आया, उसे आप वेलकम ना करो, उसे ग्रीट ना करो, उसे गले ना मिलो, आप उसका सत्कार ना करो। तो भारतीय संस्कृति में एक और इस लाइन कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि कैसा है? देव के समान है, देव तुल्य है। तो जिस तरीके से आपके ईश्वर हैं, पैगंबर हैं, उसी तरीके से अतिथि की तुलना की गई भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। तो भारतीय संस्कृति में जो लोग भी हैं सब भारतीय हैं और सभी सनातनी हैं। उसके पीछे कारण बस यह है कि जो इस व्यवस्था में है, कहीं से भी आया हो, वह इस व्यवस्था का है, वह इस व्यवस्था का हो गया, चाहे जिसका अनुयायी हो, चाहे जिसको फॉलो करे, लेकिन संस्कृति उसकी एक है, इसलिए वह सनातन है। कई लोग धर्म की भी बात करते हैं। धर्म क्या है कि धर्म एक धारणा है, आप जो धारण करते हो, बाकी सारी चीजें तो अलग है, उसमें बहुत सारे डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि भटकाव यहाँ पे अपने टाइटल्स हो जाएगा मेरा। तो अब अपने हम टॉपिक पे अगर आए कि क्या इंपॉर्टेंस आप करते हो। आप अगर कहानी आम की अगर लिख रहे हो तो उसमें कटहल का डालोगे, जैक फ्रूट्स की अगर बात करोगे तो कहानी बनेगी नहीं। आपके जो विशेषण होंगे उसमें फिर कह रहा है कि लिमिटेड एडजेक्टिव, विशेषण आपके लिमिटेड होने चाहिए। दूसरा फिर कह रहा है कि अवॉइड पैसिव, पैसिव चीजों से आप बचिए। एक होती है सकारात्मक प्रतिक्रिया, एक होती है नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो नकारात्मक तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन सकारात्मक जब प्रतिक्रिया करते हो, सपोज करो सकारात्मक किसे हम मानते हैं, सपोज करो आपके अच्छे फ्रेंड हैं कोई, उससे आप बातचीत कर रहे हो डेली, अचानक एक दिन उससे बात ही ना करो, उसे खुद नहीं समझ पाएगा कि मैंने क्या किया है, कहां से गलती हो गई, क्या किया, ये बात क्यों नहीं कर रहा है, इसके साथ कुछ घटित हुआ है, मैंने कुछ कहा, क्या हुआ इस बीच में। दिस इज कॉल्ड बाय द पैसिव नरेशन। उससे भी बचने की जरूरत है। अगेन थिंक, रीथिंक एंड रीराइट। कोई स्टोरी जब लिखिए तो पहले उसको क्या कह रहा है, सोचिए,
दोबारा सोचिए, फिर उसको क्या करिए, जो लिखे हैं फिर उसको फिर से रिराइट करिए। अब्स्ट्रैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, जो ब्रीफ आप बनाइए, जो सार बनाइए कहानी का अपना, उसका एक सिंपल, और उसको फील करिए, ऑब्जर्वेशन करिए पहले कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं तो उसे किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। दीज आर द 8 की फीचर्स इंपॉर्टेंट इन द इन्वर्टेड पिरामिड। तो अगर इसको आप फॉलो करते हो, निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से आपकी कहानी में फैक्ट्स होंगे, ऑडियंस को अटेंशन क्रिएट करेगा। और दूसरा, अब अगर हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड इन द नॉन जर्नलिस्टिक राइटिंग, यह क्या है, क्या इसके पीछे इन्वर्टेड पिरामिड में अगर हम जर्नलिस्ट अप्रोच से न सोचें तो क्या हो सकता है। जैसे कि आप वेब पे कोई लोग लिख रहा है, एज ए वेब राइटर कोई है, कोई अपनी कहानी लिख रहा है, कोई भी, हर कोई कुछ कुछ लिखता है। The writing in inverted pyramid style has so many benefits for the reader. A reader को क्या करता है, बहुत सारे फायदे हैं। Who writes for the web should write that way. उस कहानी से सीख करके पढ़ता है। Sometimes referred to as a front loading. उसको फ्रंट में किस तरीके से लोड करता हो अभी बात कर रहा है। It means you should put your the most important informations first while writing for the web, right? It means when you start like the inverted pyramid, any story and any writings, the firstly you go through your highlights, your headings. What should be your heading? Concise your heading. This is called by the inverted pyramid. It means the most important thing is the concise and the significance of the heading. If your heading create attention of the audience, so that's why audience, all of them immediately go through your story. Otherwise they skip the page and go ahead the next page. यहाँ पर यह यूनिट जो यहीं पे मित्रों, विद्यार्थी मित्रों समाप्त होता है। तो इसमें मैंने आपको उसके के फीचर की भी बात आपसे की, उसमें मैंने आपसे यह भी बताया कि किस तरीके से पंचलाइन के क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने आपसे सारी चीज़ें उसके जो दूसरे पहलू थे उन सब पहलू बताए कि नॉन जर्नलिस्टिक अप्रोच से किस तरीके से आप सोच सकते हैं। कई मैंने एग्जाम्पल दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप को यह कहानी या भी इन्वर्टेड पिरामिड के पीछे जो हमने आपसे बताई, जो आपसे हमने चर्चा करी, निस्संदेह आपको समझ में आया होगा। और जब भी आप कोई कहानी आप लिखते हो, जब भी कोई कहानी आप गढ़ते हो, आप सोचिए उसको कि किस तरीके से उस कहानी को क्रिएट करें, कैसे हाईलाइट करें, क्या उसको कैसे पंच लाइन बनाएं, फोकस किस तरीके से वो करते हैं। जैसे कि आपके कैमरा जैसे होता है, कैमरे को फोकस करते हैं सेंटर पे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पे उसको सेंटर करना है, कैसे केंद्रित करना है। तो फोकस आपकी, जब भी आप कुछ करते हो तो हाईलाइट होनी चाहिए। तो हाईलाइट फोकस करोगे अपने हेडिंग को जब बनाओगे, तो निश्चित रूप से कोई आपकी कहानी में देखेगा, उसमें गो थ्रू करेगा, उसमें जाएगा, उसको फील करेगा, सोचेगा। अदरवाइज वह अगर अटेंशन क्रिएट नहीं करेगी तो उसमें कोई नहीं जाएगा। तो तीन प्रश्न यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, तो आप उसको कल हमने नहीं दिए थे, तो यहाँ पे 3 जो प्रश्न हैं, इन एन इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर्स द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स शुड अपीयर फर्स्ट और लास्ट, इसको आप देखिए। नेक्स्ट हमने इसमें है आइडेंटिफाई द 5 W S and H इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, उसमें किस तरीके से अप्रोप्रिएट करोगे। एंड नेक्स्ट राइट अ लिस्ट ऑफ 5 टिकट्स फॉर द कैची हेडलाइंस, किस तरीके से ट्रिक्स क्या होगी, 5 ट्रिक्स जो होगी आपकी हेडलाइंस की, कैसे उसे बनाओगे। तो उसको आप एक बार रीराइट करें, इसको आप देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो समझा, जो आपने बुक पढ़ी, जो आपने समझा, देखा, महसूस किया, वो आप अपने को कहाँ पाएंगे। तो निश्चित रूप से एग्जाम में और आगे भविष्य के लिए इसके आपके लिए लाभकारी होगा। तो यह यूनिट यहीं पे विद्यार्थी मित्रों समाप्त होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः